بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو ہمارا السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے دوست احباب، اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو اب آتے ہیں ہمارے آج کے وی لاگ کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا وی لاگ پاکستان دشمن اور پاکستان کے بھگوڑے عادل راجہ کے بارے میں ہے کہ جو برطانیہ کی سرزمین سے پاکستان کی دشمن ایجنسیز جیسے موساد ہے، را ہے، MI6 ہے، ان جیسی ایجنسی کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے اور پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے۔ لیکن اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھا، کیونکہ نو مور دیئر۔ اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس کے تمام سوشل اکاؤنٹس جیسے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب سب اڑا دیے گئے ہیں۔ ایسا کچھ کسی کے ساتھ ہو جائے تو سمجھے اس کی موت واقع ہو چکی ہے، کیونکہ وہ شخص جس کا دار و مدار انہی چیزوں پر تھا، اگر یہ اس کی دسترس سے باہر کر دی جائے تو پھر واقعی یہ کسی کی موت کے برابر ہی ہوتا ہے اور یوں سمجھیں کہ وہ مارا گیا ہے۔ اور یہ چیز پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کے یہ جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ پاکستان آرمی کی شکایت پر بند کیے گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ عادل راجہ جو اس جیسے اور جتنے لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک سے باہر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت محفوظ ہیں اور ان کے خلاف کچھ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ابھی آگے بہت کچھ ہو رہا ہے عادل راجہ جیسے لوگوں کے خلاف اور اس جیسے اور جو ہمارے سو کالڈ لیڈروں کے ہواری ہیں ان کے ساتھ، اور وہ دنیا دیکھے گی۔ اسی طرح جیسے یہ لوگ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر یا ناقابل گرفت سمجھتے تھے، اسی طرح ان کے لیڈر عمران صاحب بھی ہیں جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ احمقوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، احمقوں کی جنت میں بستے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اب بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ اب بھی تصورات میں خود کو ملک کا آئندہ وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اب وہ دور گئے، وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے۔ ابھی تک جو ان کے ساتھ اور PTI کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، زیرے کے برابر ہے جو آئندہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ان کی سوچ سے بھی زیادہ وہاں تک ان کی سوچ پہنچ نہیں سکتی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور شاید وہ اس کو برداشت بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ اتنی چھوٹا سا ایک ٹریلر تھا، وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، تو آگے جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے وہ کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس کی وجہ میں اس سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ مسلسل ابھی تک ان کو سبق نہیں ملا، انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا، اور وہ مسلسل یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس سے ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بس الیکشن ہونے دو اور پھر ہم کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ بقول ان کے ٹکٹ ہولڈرز جنہوں نے ان کے ٹکٹ واپس کیے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی ریشو ان کے مقابلے میں کم ہے جو ابھی تک PTI میں ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیدوار جو ٹکٹ ہولڈر نکل گئے ہیں پارٹی سے ان کی جگہ لینے کے لیے اور لوگ بھی تیار ہیں، لیکن یہ شیخ چلی کی سوچ ہے، وہ شیخ چلی کی طرح سوچ رہے ہیں، اور اس کے آگے وہی ہوگا کہ جب سارے انڈے ٹوٹیں گے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مگر اب جو شروع ہوا ہے، عادل راجہ عمران صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک اہم ممبر اور رکن تھا، اور وہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا تھا،
और बेइंतहा नुकसान पहुंचा रहा था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 9 मई की सानह में उस शख्स ने भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन अब उसका मक्कू ऐसे ठपा गया है कि बरतानिया के आर्मी चीफ जब पाकिस्तान आए, उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। वो आर्मी के शोहदा की यादगार पर भी गए और वहाँ पर फूल चढ़ाए, और फूल चढ़ाने के बाद सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने सानिया है 9 मई के सानिया की शदीद मजम्मत की, और ये मजम्मत बरतानिया के आर्मी चीफ की तरफ से आदिल राजा जैसे लोगों के लिए किसी धचके से कम नहीं है। क्योंकि इसलिए ये कम नहीं है कि पिछले साल अगस्त में बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान मुजरमान का तबादले का मुआहदा हुआ था, और इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के वो मुजरिम या वो मुलजिम जो पाकिस्तानी हैं और वो वहाँ पर बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो इस तरह आदिल राजा जैसे और लोग और हैदर मेहदी जैसे मुल्क दुश्मन लोगों को पाकिस्तान बरतानिया से शायद एक्स्ट्राडाइट की रिक्वेस्ट करेगा, ताकि उनको पाकिस्तान भेजा जा सके, और उसका मुस्बत जवाब मिला है। और इस तरह के लोगों की गर्दन नापी जा रही है, और इन जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर उछल रहे थे, उनको घसीट कर पाकिस्तान ऐसे लाया जाएगा कि उनके साथ नस्लें जान रखेगी। और इनमें आदिल राजा ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ साथ एक बहुत नाम है कल के एक बचूंगरे का, शायान अली जिसे कहते हैं, वो भी उसमें शामिल है, जिनकी नेशनैलिटी भी अब खतरे में पड़ गई है। तो इस तरह पाकिस्तान में रहने वाले जो नारे लगाते थे, वो लोग जो पाकिस्तान में हैं और यहाँ पर बड़ी शद्दोमत के साथ नारे लगाया करते थे कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तो वो आज़ादी मुझे तो ये समझ नहीं रही कि कौन सी आज़ादी वो लेना चाह रहे हैं और किससे छीनना चाह रहे हैं। ये नारे तो उनको जाके मकबूजा कश्मीर में लगाने चाहिए, क्योंकि ये नारा निकला भी वहाँ से था, और यह है भी मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए जो बेचारे आर्मी इंडियन के जुल्म सितम सह रहे हैं, हिंदुस्तान की फ़ौज के जुल्म सितम सह रहे हैं, तो वो आज़ादी मांग रहे हैं। आपको कौन सी आज़ादी? आपको तो आज़ादी 1947 में मिल चुकी है। हमारा पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर। अब आपको कौन सी आज़ादी चाहिए? क्या आप एक दफ़ा फिर उसी तरह का खून बहाना चाहते हैं, उसी तरह खून की नदियाँ बहाना चाहते हैं? लेकिन वो आज़ादी के नारे लगाने वाले और टक्कर के लोग जैसे नारे लगाने वालों के साथ बहर के मुल्कों में महफूज बैठे हुए थे, तो वो ये समझते थे कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो सब लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे, और अमेरिका पहले इसमें रुकावटें डाल रहा था, क्योंकि उसमें आपको पता है कि इमरान साहब की लॉबी काफ़ी एक्टिव है, अमेरिका में काम शुरू कर चुकी थी, तो अमेरिका रुकावटें डाल रहा था, मगर उसको अब हकीकी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। अब इमरान खान, उसकी एक मिसाल इमरान खान है, जिनका नाम ECL में डाल दिया गया है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि अब उनको वाकई सज़ा का मुस्तहिक समझ लिया गया है, और पाकिस्तान आर्मी और हुकूमत उनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। और इमरान खान को भी ये इल्म होना चाहिए कि इस मंतकी अंजाम का मतलब क्या निकलेगा, इसलिए उनका नाम ECL में डाला गया। लेकिन पहले हालांकि ये सुनी सुनाई थी कि वो किसी डील के तहत उनको जो है मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा, मगर उसके बाद कुछ ऐसे वाज़ेह तौर पर कंक्रीट किस्म के एविडेंस, पुख्ता सबूत हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी को मिले कि उसमें इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट साफ ज़ाहिर हो रही है 9 मई के सानिया में। तो इस वजह से अब उनका नाम ECL में डाल दिया गया है, और वो जो प्लान बनाया गया था कि इनको मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, उसको मौखर कर दिया गया है। अब इनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और इमरान साहब को देखें, इतने बड़े लीडर होके वो हर रोज़ कलाबाज़ें खा रहे हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। अभी तक उनकी यू टर्न लेने वाली आदत नहीं गई, और इतने संगीन हालात का सामना करने के बावजूद भी वो अपनी उसी पुरानी डगर पर चल रहे हैं। माज़रत चाहता हूँ। उसकी मिसाल ये एक रिसेंटली उनका दिया गया इंटरव्यू है जो उन्होंने BBC को दिया है, और उसमें उस BBC की इंटरव्यू लेने वाली जो जर्नलिस्ट थी, उसने इमरान साहब के बख्शे उधेर कर रख दिए हैं, क्योंकि इमरान साहब आदि हैं इंटरव्यू देने के लिए अपने चहीते सहाफ़ियों को, अपने जान पहचान के सहाफ़ियों को, कि जो प्लांटेड इंटरव्यू होते थे,
क्वेश्चन उनकी तरफ से जाते थे और ये उनका जवाब दिया जाता था। जो क्वेश्चन होते थे वो इमरान खान ही देता था कि ये सवाल आपने मुझसे करने हैं, और फिर जो उनका जवाब देते थे और बढ़ चढ़ कर गरज बरज के साथ जवाब दिया करते थे। लेकिन कल ये उस जर्नलिस्ट के सामने, BBC की नुमाइंदा के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बने हुए बैठे हुए थे कि उसके सवालों का जवाब इनके पास नहीं था। ऐं बैं शय करते रहे, और वो लोग, उनके लिए मुकाम इबरत है जो बड़े ज़ोर से नारे लगाया करते थे कि इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया था किसी जरीदे को या किसी TV चैनल को, जिसमें इन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। उस एब्सोल्युटली नॉट को उठाकर आज तक ये PTA के जो वर्कर्स हैं और इमरान खान के जो पैरोकार हैं वो उसी एब्सोल्युटली नॉट को उठाकर कंधे पर फिर रहे हैं हर जगह पर। अब उनको ये इंटरव्यू भी देखना चाहिए कि इनमें इमरान खान का क्या हशर हुआ है। उसका एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इमरान साहब जहाँ पर किसी वक्त कहते हैं कि ये जो कुछ 9 मई को हुआ है उसमें इनका कोई कसूर नहीं है, 9 मई को जो कुछ हुआ है उसमें इनकी पार्टी के वर्कर शामिल नहीं है, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उनके वर्कर को छोड़ा जाए। तो अगर आपके वर्कर नहीं है तो फिर उनको, जो लोग गिरफ्तार हुए उनके आप फेवर क्यों कर रहे हो? फिर उस जर्नलिस्ट से जब उनसे ये सवाल किया कि आपके वर्कर्स कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि इमरान खान हमारे लिए रेड लाइन है, इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं अगर रेड लाइन का मतलब ये है कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसका रिएक्शन आएगा, ऐसा रिएक्शन जैसे 9 मई को हुआ था। उसके बाद एक और सवाल के जवाब में इन्होंने एक और सवाल इनसे किया गया कि आप जो है वो हुकूमत को धमकियाँ देते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि इसका रिएक्शन 9 मई के सामने से भी ज़्यादा आएगा, तो इसका क्या मतलब है? आपकी पार्टी उसमें शामिल है, आप उसमें शामिल हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो जो कुछ किया मेरी पार्टी और मेरी पार्टी के वर्कर्स ने किया, मैं तो उसमें शामिल ही नहीं था। तो उसने जर्नलिस्ट से फिर इनसे ये सवाल किया कि इमरान साहब, हमने देखा है कि आपके वर्कर्स, आपकी पार्टी वाले गुलेले और डंडे लेके पुलिस के सामने खड़े हुए थे, तो फिर क्या पुलिस उनको फूलों के हार पहनाती? इसका जवाब इमरान साहब के पास नहीं था। आज के लिए इतना ही, कल एक और लाख के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में।